Hello everyone and welcome back to our channel The Absolute Chemistry. I'm Abhishek. As you know, we are going to start a new topic today, which is the fourth chapter of our NCERT book, Carbon and its Compound. See, before starting this topic, we must understand the importance of this topic. This is a very important as well as a very conceptual and a very useful topic for chemistry students because carbon consists of almost a large portion of chemistry. Not only chemistry, carbon plays almost uh, entire role in our life. We'll learn about that. But this is a very important topic for the sake of understanding and for the sake of knowledge. So you can expect a lot of questions from this topic. So please try to understand each and every point which I want to explain, and I'll be very gentle and I'll be very informative in this topic, so try to be focused as well. So before starting this topic, we must know about carbon because we are going to learn about carbon. So for before learning anything else, we will start something about carbon. So we all know that carbon, the symbol is C. We represent it with C. हम इसको C से represent करते हैं और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है हमारा 6. तो इस जो एटॉमिक नंबर 6 से हमें क्या पता चलता है? ये जो एटॉमिक नंबर हमारा जो कार्बन का मैंने बोल दिया आपको कि वो 6 होता है, उससे हमें क्या पता चलता है? उससे हमें ये पता चलता है कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ओके in carbon atom is 6, and if the atom is neutral, then the number of electrons is also 6. Okay, but for knowing the atomic number we must consider the number of protons, not the number of electrons, because we already know to form an ion the atom can lose or gain electron, it cannot lose or gain any proton. So if we start considering electron to know the atomic number, then we won't be able to get the exact atomic number, or we won't be able to determine the exact atomic number of any atom. So we consider the number of protons. So now we will see, and we all know that carbon is a non-metal. Carbon is a non-metal, and the atomic number we already know 6. So it means there are 6 number of protons and 6 number of electrons if the atom is neutral. But we have to know the importance of carbon in our life. Now we have to study the importance of carbon in our life. See, the first importance of carbon is it consists all the living organisms. Where there is life, there is carbon. Where there is life, there is carbon. It may be plants, it may be animals, including us. And in biology, when you will learn about the classification of living organisms, all the kinds of living organisms you are going to study, they will be consisted of carbon. Our entire body consists of carbon. The food supplements that we use, the food supplements that we use, those are also consist of carbon. Like for grains, fruits, vegetables, fats, etc. and etc. etc. and etc. I'll go for a new page. Don't save. The next importance I can mention, fuels. Okay, from fuels I mean to say that coal, petrol, you all know these things, CNG, even wood that we get from the plants, anything, or leaves that also we
यूज एज अ फ्यूल सोर्स। तो कार्बन को अगर आप देखोगे तो हमें हर चीज में कार्बन मिलेगा, चाहे हम अपने खाने में देख ले, चाहे हम अपने खुद को देख ले, या हम जिसको फ्यूल की तरह यूज करते हैं, या फिर हम जो क्लोथ्स को पहने भी हैं, हम जिस क्लोथ्स को पहने भी हैं वो भी जो कि होता है कॉटन से बना हो, या फिर वूल से बना हो, या फिर नायलॉन से बना हो, चाहे किसी से बना हो, एटसेट्रा, दे ऑल कंसिस्ट ऑफ कार्बन, दे ऑल आर मेड ऑफ कार्बन. So I can say that where there is life, there is carbon. Carbon is very important for us, and we can find carbon in almost everything, almost everything. But this is important. This is very important that carbon on Earth crust or Earth surface, in the surface, on the surface of Earth, the amount of carbon is only 0.02%. जितना अमाउंट सारे के सारे मिला के होते हैं, कार्बन सिर्फ और सिर्फ 0.02% होता है, इन फॉर्म ऑफ आर कोल, पेट्रोल, natural gas, all the natural gas, everything that consists of only and only 0.02%. And also it also exists as in the form of carbonates, or also bicarbonates, which are known as hydrogen carbonates. Okay, and in atmosphere, this is on Earth's surface, and in atmosphere the percentage is 0.03%, and this is in the form of CO2 gas, carbon dioxide gas. Only 0.02% on the Earth's surface and only 0.03% in the atmosphere. But it consists of everything you name it, there must be something related to carbon. The entire human body is made up of carbon. All the living organisms are made up of carbon. Everything is made up of carbon. So carbon is a very important topic in our life. We have to read it very carefully. Now we'll see what is the test for carbon. How do we know if any substance consists of carbon or not? See, the test for carbon, हमें पता तो होना चाहिए कि कार्बन उस सब्सटेंस में है कि नहीं. वो हम कैसे पता करेंगे? वो हम उसको सिंपल वे में पता करेंगे. कैसे? by burning it in air. By burning in air. I am simply writing by burning in air. अब एयर में अगर उसको हम जलाएंगे तो हम कैसे जानेंगे उसको? देखो, अगर कहीं पे कार्बन होगा और हम उसको एयर के प्रेजेंस में जलाएंगे, और मैं बार बार आपको बोल चुका हूं, जलाने का मतलब होता है ऑक्सीजन के साथ आप उसको रिएक्शन करवाओगे, कंबशन करवाओगे उसका ऑक्सीजन के साथ, तो इट विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, अगर कार्बन होगा तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा कि नहीं? अगर नहीं होगा तो कुछ और बन जाएगा, जो भी होगा ऑक्सीजन के साथ अगर वो रिएक्ट करेगा. लेकिन अगर कार्बन होता है और ऑक्सीजन के साथ वो कंबशन होता है, तो वो आराम से हम जानते हैं कि वो फॉर्म करेगा अपना कार्बन डाइऑक्साइड. तो अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बना, इसको हम अगर कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि हमारा लाइमस्टोन हम इसको बोलते हैं, सॉरी लाइमस्टोन नहीं, इसको हम लाइम वाटर बोलते हैं, अगर इसका हम लिक्विड फॉर्म इसको ले रहे हैं, और अगर इसको हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो ये हमें फॉर्म करेगा CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, विच इज अ मिल्की सब्सटेंस. और इसको हम, जो हमारा टॉपिक 1 था, केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शंस, उसमें हमने ये सब बहुत अच्छे से पढ़ा था. और मैं स्पेशली एक वीडियो लाऊंगा केमिस्ट्री में, आपका क्लास 10 में जितने रिएक्शंस हैं उनको कंबाइन करके एक वीडियो में हम डाल देंगे, ताकि आपको दोबारा रिएक्शंस को याद करना या फिर उनको भूल जाना, ऐसे में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा. आपको हर रिएक्शन आपको मिल जाएगा. तो अब हम टेस्ट में कैसे जान पाएंगे? अगर वहां पे कार्बन प्रेजेंट होगा, तो हम उसको अगर एयर के प्रेजेंस में
कंबशन करेंगे तो वो डेफिनेटली कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, और उस कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम CaO कैल्शियम ऑक्साइड के साथ अगर रिएक्ट करवाएंगे तो वो हमें कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म करेगा, विच इज मिल्की इन नेचर। तो अगर कोई मिल्की सब्सटेंस फॉर्म होगा ये जो दोनों इन दोनों स्टेप में, अगर फाइनल प्रोडक्ट एक मिल्की सब्सटेंस बनेगा तो हम जानेंगे देयर इज प्रेजेंस ऑफ कार्बन। उस कंपाउंड में देयर इज प्रेजेंस ऑफ कार्बन। तो ये है उसका एविडेंस। ओके, अगर वो एक मिल्की सब्सटेंस फॉर्म करेगा जो कि है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, मैं यहां पे इसको लिख भी दे रहा हूं, दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, इसके बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा है टॉपिक 1 में। ठीक है, तो ये था कार्बन के बारे में हल्का फुल्का कुछ चीजें जो कि कार्बन के बारे में हमें जानना था। अब हम अपने टॉपिक में एक्चुअल टॉपिक में आएंगे जो कि हमें पढ़ना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं आपको बताता हूं इस टॉपिक को। हाँ, which is covalent bonding। कोवैलेंट बॉन्डिंग, देखो हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स टॉपिक में हमने आयोनिक बॉन्ड के बारे में हमने पढ़ लिया है। ठीक है, हमने आयोनिक बॉन्ड्स के बारे में हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी। ये हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स में पढ़ा था, ये हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स में बहुत डिटेल से पढ़ा था, पूरा एक क्लास लगा दिया था हमने। अब देखो ये जो आयोनिक बॉन्ड्स हैं इनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा याद भी दिला देता हूँ कि बिकॉज आप भूल गए होंगे। यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे ये होता था कि एक कैटायन आता था, कोई भी C+ का मतलब कैटायन। ओके, और एक एनायन होता था, और ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलते थे और वो एक कंपाउंड फॉर्म करते थे, और जिसको हम बोलते थे आयोनिक कंपाउंड। मोटा मोटा यही उसका था। अब उसके पीछे का कारण बहुत कुछ था कि क्यों ऐसे कैटायन बनेगा, क्यों एनायन बनेगा, क्यों इस तरह से वो फॉर्म करते थे, वो सब हम जानते थे क्यों होता था। मैं ऑलरेडी आपको यहाँ पे और एक बार भी बता देता हूँ, आपको पता था, मैंने वहां पे बताया था आपको, टू अटेन द नियरेस्ट नोबल गैस, टू अटेन द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये मैंने वहां पर आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। ठीक है, अभी फिर से हम इसके बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले हम आयोनिक बॉन्ड्स के जो कंपाउंड्स हम बना रहे थे उसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। देखो जो आयोनिक बॉन्ड कंपाउंड बना रहे थे, लेकिन जैसे कि एक एग्जांपल ले रहे थे हम HCl, नहीं HCl को नहीं लेते हैं हम, चलो NaCl लेते हैं। ठीक है, NaCl को हम एक आयोनिक कंपाउंड, हम सब जानते हैं, ये एक हमारा कॉमन सॉल्ट है जो हम घर पे यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये Na+ और Cl- की तरह एग्जिस्ट करता है। ये किस तरह से फॉर्म होता है, अगर Na+ और Cl- एक दूसरे के साथ रिएक्ट करवाते थे तो ये फॉर्म होता था। और ये जो Na+ और Cl- एक दूसरे के साथ क्यों रिएक्ट करते थे वो हमें समझना है, तो वो हम यहां पे समझते हैं। ठीक है, हमें पता है कि ये जो सोडियम होता है हमारा, उसका एटॉमिक नंबर होता है 11, और हमारा जो क्लोरीन था उसका एटॉमिक नंबर था 17। अच्छा, अब अगर सोडियम की बात हम करेंगे तो क्या ये जो 11 एटॉमिक नंबर उसका था वो उसका एक नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन को वो अटेंड कर पाएगा क्या 11 एटॉमिक नंबर में? बिल्कुल नहीं। नियरेस्ट नोबेल गैस जो सोडियम के पास होता था वो हमारा होता था नियॉन, विच इज 10। तो अगर सोडियम को नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन नियॉन का अटेंड करना पड़ता, अगर सोडियम को अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि अगर वो हमारा नियरेस्ट नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड करता, मैं वहां पे आपको बोला था कि वो अपना ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन को फुलफिल कर लेगा, वो अपने ऑक्टेट को फुलफिल कर लेगा तो उसका स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। तो अगर सोडियम को इस 11 से 10 इलेक्ट्रॉन में आना था तो वो क्या करता, वो एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता था और वो एक पॉजिटिव चार्ज अटेंड करता था। उसी तरह से क्लोरीन अपने जो नियरेस्ट नोबेल गैस था वो था आर्गन 18, उसको अगर उसको अटेंड करना था तो उसको एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चाहिए था। तो अब सोडियम और क्लोरीन, मैं एक नया पेज ले लेता हूं। अब सोडियम एंड क्लोरीन
हमारा जो Na प्लस और जो Cl माइनस था वो दोनों आयोनिक फॉर्म में, देखो अब सोडियम क्या करेगा, उसके पास 11 था, क्लोरीन के पास 17 था, तो अब अगर इन दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग क्या हुआ, क्लोरीन ने उसको बोला कि देख सोडियम, तेरे पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जो कि तुझे ऑक्टेट अटेंड करने नहीं दे रहा है, मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन कम है जो कि मुझे अपना ऑक्टेट अटेंड करने नहीं दे रहा है, तो अगर तू अपना ये जो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन अगर तू मुझे ट्रांसफर कर देगा, अगर तू ये एक इलेक्ट्रॉन अगर मुझे तू कंप्लीट ट्रांसफर कर देगा, अगर तू मुझे ये कंप्लीट ट्रांसफर कर देगा, तो मेरा ऑक्टेट, मैं Cl माइनस जब बनूंगा तो मेरा ऑक्टेट 18 में फिलअप हो जाएगा, मैं आर्गन 18 के साथ मैच कर जाऊंगा, और तू जब सोडियम प्लस बन जाएगा जो कि 10 तेरा एटॉमिक नंबर बन जाएगा, तू नियॉन 10 के साथ मैच कर जाएगा और हम दोनों स्टेबल हो जाएंगे, हम दोनों स्टेबल हो जाएंगे। तो इस तरह से जब सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस अपने अपने अंडरस्टैंडिंग बना के आसपास आ गए, तो इन दोनों के बीच ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज हो गया। अब इन दोनों के बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा था, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा था, ठीक है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा था। तो इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम बोलते थे, इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही हम बोलते थे आयोनिक बॉन्ड, और इसके वजह से जो कंपाउंड इस तरह से बनता था उसको हम बोलते थे आयोनिक कंपाउंड। तो आयोनिक कंपाउंड के बारे में हमने थोड़ा थोड़ा आइडिया ले लिया। ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और अपने ऑक्टेट फिलअप करने के चक्कर में वो एक दूसरे के पास आते थे, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करते थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। मैंने आपको बार बार वहां पे बताया था कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करते थे, जिसके वजह से वहां पे आयोन्स फॉर्म होता था, और जिसके वजह से वहां पे आयोन्स फॉर्म होता था, और वो दोनों आयोन्स के बीच, जबकि क्योंकि वो अपोजिटली चार्ज आयोन्स फॉर्म होते थे, एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, तो वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता था। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो वहां पे डेफिनेटली दोनों एक दूसरे के पास और आ जाएंगे, और वो जो पास आना और उनके बीच का जो अट्रैक्शन होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता था, उसी को हम बोलते थे आयोनिक बॉन्ड, और उस कंपाउंड को हम बोलते थे आयोनिक कंपाउंड। अब इसका प्रॉपर्टीज के बारे में भी हमको थोड़ा आइडिया था। देखो, ड्यू टू दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, ओके, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, तो इसके वजह से हम ये भी उनके प्रॉपर्टीज में डिस्कस किए थे कि इनके बीच का जो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट था वो हाई था। क्यों? ड्यू टू दिस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये एक पॉइंट था। और दूसरा पॉइंट था ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयोन्स इन, जब हम इसका एक्वस और मोल्टेन स्टेट में इसको हम लेते थे, तो वहां पर फॉर्मेशन ऑफ आयन्स होता था, ठीक है। तो जब फॉर्मेशन ऑफ आयन होता था, मैंने आपको वहां पे बताया भी था इलेक्ट्रोलाइसिस में किस तरह से, मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोलाइसिस में, जब मैंने आपको इलेक्ट्रोलाइसिस का थोड़ा सा आइडिया दिया था, इलेक्ट्रोलाइसिस में मैंने बताया था कि ड्यू टू दिस फॉर्मेशन ऑफ आयन इन देयर, ये टूट जाते थे। कब टूटते थे? जब उनको आप एक्वस स्टेट में या फिर उनको आप मोल्टेन स्टेट में लेते थे, तो इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो टूट जाता था, और Na प्लस और Cl माइनस एक दूसरे से अलग हो जाते थे, और इसके वजह से कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पॉसिबल हो रहा था। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पॉसिबल हो रहा था। क्यों पॉसिबल हो रहा था? बिकॉज इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो टूट जाता था, जिसके वजह से ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट आयोन्स थे वो एक दूसरे से अलग हो जाते थे, वो चार्ज कैरी करने के लिए अवेलेबल हो जाते थे। इसी वजह से उनके बीच वो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव हो जाते थे। कहा? अपने एक्वस और मोल्टेन स्टेट में, नॉट इन सॉलिड स्टेट। और हमें यह भी पता था कि दे वेर नॉर्मली इन सॉलिड स्टेट, उनको हमें एक्वस और मोल्टेन स्टेट में
लेना पड़ता था, अगर हमें इसको पानी में डिसॉल्व करके एक्वस स्टेट में लेते थे या फिर उसको हम हीट के थ्रू उसको हम मोल्टन करते थे। तो ये था हमारा आयोनिक कंपाउंड के बारे में जो भी डिस्कशन हमने करना, पहले हमने सब कर लिया था, बस मैं आपको याद दिला रहा था बिकॉज आप भूल गए होंगे, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा बता रहा था। और मुझे कंपेयर करने में, क्योंकि हम आज डिफरेंशिएट भी करेंगे आयोनिक कंपाउंड्स एंड कोवैलेंट कंपाउंड्स को उनके प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, तो इसलिए मुझे वो थोड़ा बताना सही लगा, तो मैंने उसको बता दिया। तो अब हम अपने टॉपिक पे चलते हैं, जो कि हमें एक्चुअल में पढ़ना था, वो था हमारा कोवैलेंट कंपाउंड्स। ओके, कोवैलेंट कंपाउंड्स और कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा तभी तो कोवैलेंट कंपाउंड्स बनेंगे ना। अब देखो ठीक है, हम देखते हैं HCl को। HCl के बारे में चलो थोड़ा डिस्कस करते हैं, ठीक है। आप थोड़ा ध्यान से देखना, प्रॉब्लम कहाँ पे आता है, क्यों प्रॉब्लम आता है, वो थोड़ा आप समझो, स्टोरी के तरह आप समझो इस चीज को। बहुत आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आप इसको एक स्टोरी की तरह समझो। मैं आपको समझाता हूँ। देखो, अगर आप HCl की बात करोगे तो उसमें दो चीज है, एक तो हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये दोनों एटम है। हाइड्रोजन का आपको पता है इसका 1 होता है और क्लोरीन का आपको पता है 17 होता है। अगर हाइड्रोजन अपना नियरेस्ट नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन का अटेंड करेगा तो उसका नियरेस्ट कौन सा वाला है, हीलियम 2। क्लोरीन अगर अटेंड करेगा तो उसका है आर्गन 18, ठीक है। अब अगर हाइड्रोजन को हीलियम के पास जाना होता तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको एक इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। अब क्लोरीन को क्या करना पड़ेगा, क्लोरीन को भी एक इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, ठीक है। क्लोरीन को भी एक इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। लेकिन जब हम लोग HCl बनाते हैं और जब इसको हम तोड़ते हैं तो हम देखते हैं कि वहां पर हमें H प्लस और क्लोरीन माइनस मिलता है, ठीक है। H प्लस एंड क्लोरीन माइनस मिलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी एक तरह से आयोनिक कंपाउंड की तरह हम इसको कंसिडर करेंगे, क्योंकि यहां पर भी आयोन्स तो फॉर्म हुआ ना, यहां पर भी आयोन्स फॉर्म हुआ। तो यहां पर क्या हुआ होगा, ये जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होने का कंडीशन क्या रहा होगा, वो थोड़ा हमें समझना है। देखो, ये जो हाइड्रोजन बेचारा होगा, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था। अब ये क्लोरीन जो होगा उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन थे। इस तरह से मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। मतलब कि अपने वैलेंस सेल में, ठीक है, वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। और मुझे पता है कि आप वैलेंस सेल को पूरा भूल चुके होंगे, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको वैलेंस सेल का भी आइडिया दे देता हूँ। एक और बार मैंने आपको बता दिया था, वैलेंस सेल एंड वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, इसको हम VSE से मैं रिप्रेजेंट करूंगा। देखो, वैलेंस सेल क्या होता है, सपोज आप कार्बन 6 की बात करो, आपको पता है कि कार्बन का न्यूक्लियस होता है, उसके चारों ओर इस तरह से हमारे सेल्स होते हैं, ठीक है, आपको मालूम है। हमें यह भी मालूम कि उसका हमने नाम दिया था KLMN। K मतलब कि पहला सेल, L मतलब सेकेंड सेल, M मतलब थर्ड सेल, N मतलब फोर्थ सेल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरिंग कैपेसिटी मैंने आपको बताया था ऑलरेडी, मैंने आपको बता दिया था, इसमें कोई बताने वाली बात और अब बची नहीं है। हाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना कैरी कर सकता है, 2 K सेल, पहला सेल 2 इलेक्ट्रॉन कैरी कर सकता है। L सेल कितना कैरी कर सकता है, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स। M कितना कैरी करेगा, 18 इलेक्ट्रॉन। N कितना कैरी करेगा, 32 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब देखो, अगर कार्बन की बात करोगे तो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर हम उसका न्यूट्रल एटम को लेंगे, ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन। अब हम इसको फुलफिल करेंगे तो हमें पता है कि हमें अंदर से इलेक्ट्रॉन भरना है, तो पहले K में हम 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। ये क्रॉस से दिखा रहा हूं मैं, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, अब बच गए 4। अब वो L सेल में आएगा, तो L सेल का मैक्सिमम कैपेसिटी था 8, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन हमारे पास है, तो हम आराम से चारों के चारों को L में हम भर सकते हैं, ठीक है, L में हम भर सकते हैं। तो देखो, कार्बन के लिए ये जो L सेल था हमारा, ये जो L सेल था, उसको हम क्या बोल सकते हैं, उसको हम बोल सकते हैं उसका जो लास्ट सेल दैट ऑक्यूपाइज इलेक्ट्रॉन। मैं इसको थोड़ा सा लैंग्वेज को चेंज कर रहा हूं, द लास्ट सेल ऑक्यूपाइंग इलेक्ट्रॉन। इसके बाद मतलब जो लास्ट सेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन है, या फिर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा होता है
वो जिस सेल में फिल होता है। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा पता नहीं है, बिकॉज उसको आप थोड़ा 11th में देखोगे, हम इलेक्ट्रॉन को किस तरह से फिल करते हैं ऑर्बिटल्स में, वो आपको जानते नहीं हो, इसीलिए मैं आपको इस लैंग्वेज में बोल रहा हूं ताकि आप समझ पाओ। जो लास्ट सेल होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसमें लास्ट सेल कौन सा है? L, क्योंकि M में तो नहीं है, M में तो नहीं है, ये तो नहीं है, N में भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो लास्ट सेल कौन सा है? L. So for carbon the last cell is L and that is the valence cell. Okay, that is the valence cell. मैंने ये आपको समझाया था, मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। और जितने इलेक्ट्रॉन उस वैलेंस सेल में होते हैं, तो जितने इलेक्ट्रॉन उस वैलेंस सेल में होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन, इन हियर वी हैव 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के लिए हम बोलेंगे उनको उसका वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। वैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, अपने कैपेसिटी के हिसाब से। अगर हम n में किसी ऐसा कोई एटम आप देखोगे जिसका n में सपोज 31 इलेक्ट्रॉन्स आप भर रहा होगा, 31 इलेक्ट्रॉन्स, तो आप वहां पर बोलोगे उसका वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितना है, उसका नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितना बोलोगे? 31। अगर 32 भी होगा, मैक्सिमम ऑक्युपाइड है, तब आप उसको क्या बोलोगे? 32। उसके लिए उसका जो वैलेंस सेल होगा वो n सेल होगा या 4th सेल होगा, और वहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 32। कोई बात नहीं, वो अपने मैक्सिमम जितना कैपेसिटी है उतना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैरी कर सकता है। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ये था थोड़ा कॉन्सेप्ट। चलो हम HCl पे फिर वापस आते हैं। ठीक है, देखो मैं और एक पेज ले रहा हूं। देखो जब हम HCl की बात करते हैं, तो यहां पर देखो हमने देखा कि H प्लस और Cl माइनस फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अब H प्लस और Cl माइनस फॉर्म होने का कंडीशन क्या हुआ होगा? डेफिनेटली क्या कंडीशन हुआ होगा? जब ये हाइड्रोजन, ये बेचारा हाइड्रोजन जो अपना जो एक इलेक्ट्रॉन था, वो जब इस क्लोरीन को डोनेट किया होगा, तभी जाके ये H प्लस बना होगा और ये क्लोरीन अपना Cl माइनस बना होगा, और इन दोनों के बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, और वो दोनों मिलके एक आयोनिक कंपाउंड बनाए होंगे। ठीक है, ये हुआ होगा। तो देखो यहाँ पे दिक्कत क्या हुआ? आयोनिक कंपाउंड तो फॉर्म हो गया, लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या हुआ? क्लोरीन को देखो, उसको कोई दिक्कत नहीं है, उसको कोई भी दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा उसके पास तो 17 इलेक्ट्रॉन था, ये हाइड्रोजन के साथ जो एक इलेक्ट्रॉन वो ले लिया, वो मिलके अपना 18 इलेक्ट्रॉन, और जो कि आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन है उसका नियरेस्ट नोबल गैस उसने अटेंड कर लिया, उसने अपना स्टेबिलिटी अटेंड कर लिया, उसने अपना ऑक्टेट भी फुलफिल कर लिया, सब कुछ कर लिया, उसने ऑक्टेट भी फुलफिल कर लिया, उसने अपना नियरेस्ट जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है उसको भी अटेंड कर लिया। क्लोरीन इज वेरी हैप्पी, बट थिंक अबाउट दिस हाइड्रोजन, थिंक अबाउट दिस हाइड्रोजन। इस बेचारे ने भी सपना देखा था कि ये भी हीलियम 2 कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड करेगा, लेकिन क्या उसका सपना फुलफिल हो पाएगा? नहीं, क्योंकि वो तो अपना जो एक इलेक्ट्रॉन था उसको दे दिया। अब ये तो पूरा इलेक्ट्रॉनलेस ही, ये तो पूरा इलेक्ट्रॉनलेस बन गया। और मैंने आपको H प्लस के बारे में थोड़ा बताया भी था कि देखो हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन होता है, वह एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर हम इस एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे, जो कि H प्लस आयन बना देंगे, तो उसमें क्या बचेगा? सिर्फ एक ही प्रोटॉन बचेगा। उसमें तो न्यूट्रॉन तो जीरो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन तो जीरो होता है, उसमें न्यूट्रॉन होता ही नहीं है। तो ये जो H प्लस होता है उसको हम सिंपली, ये जो H प्लस होता है उसको हम प्रोटॉन भी बोल देते हैं। ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, उसमें न्यूट्रॉन पहले से नहीं होता है हाइड्रोजन एटम में, और जो एक इलेक्ट्रॉन था हाइड्रोजन एटम में हमने उसको भी निकाल दिया है। तो ये तो मैंने आपको बताया था। तो देखो यहाँ पे दिक्कत की बात देखो, वो निकला था एक इलेक्ट्रॉन को अटेंड करके, He जो हीलियम 2 कॉन्फ़िगरेशन है उसको वो अटेंड करके थोड़ा स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, लेकिन उस बेचारे ने अपना जो एक इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन उससे जबरदस्ती ले गया। क्लोरीन उसे जबरदस्ती लिया है, वो उसने खुश होकर नहीं दिया, ये ध्यान में रखना।
क्लोरीन उससे जबरदस्ती लिया है। क्यों? क्योंकि जब हम पीरियोडिक टेबल में हम देखेंगे, एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में हम पढ़ेंगे, तब तुम समझोगे क्लोरीन उससे कैसे जबरदस्ती हाइड्रोजन से वो इलेक्ट्रॉन को ले गया। हाइड्रोजन कभी उस इलेक्ट्रॉन को देना नहीं चाहेगा। कौन थोड़ी ना चाहेगा कि मैं पूरा 0 इलेक्ट्रॉन दे दूं, अपना सारा इलेक्ट्रॉन ही दे दूं और मैं इतना ज्यादा हाईली रिएक्टिव बन जाऊं। कोई भी कंपाउंड कभी रिएक्टिव बनना नहीं चाहता। हर कोई चाहता है कि मैं अपना स्टेबिलिटी अटेन कर लूं, मैं थोड़ा खुश रहूं। वो हर कोई चाहता है और हाइड्रोजन का भी वही सपना होगा, लेकिन उसका सपना क्लोरीन ने तोड़ दिया अपने जो, क्योंकि क्लोरीन यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक जो आपका पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है वहां पे हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्लोरीन थोड़ा बाहुबली किस्म का बिहेव किया और इस बेचारे हाइड्रोजन पे बहुत जुल्म ढाया और उसका जो एक ही इलेक्ट्रॉन था उसको भी ले गया। तो इस बेचारे हाइड्रोजन ये तो अभी होपलेस हो गया, ये तो अभी होपलेस हो गया। तो वो बेचारा हाइड्रोजन कभी चाहेगा कि वो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके अपना, क्लोरीन या उसके तरह किसी के साथ रिएक्शन करके अपना नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड करना वो चाहेगा क्या? कभी नहीं चाहेगा। तो ये जो अकेला भटक रहा होगा हाइड्रोजन 1 लेके, जो कि खुद अनस्टेबल है, अगर किसी के साथ रिएक्ट कर रहा है वो उसको और ज्यादा अनस्टेबल बना रहे हैं। तो हाइड्रोजन ये जो एक है वो करेगा क्या? वो करेगा क्या? वो दूसरे एक तना हाइड्रोजन को ढूंढ लेगा। ठीक है, वो एक दूसरा तना हाइड्रोजन को ढूंढ लेगा और वो उसको बोलेगा कि हाइड्रोजन देख, तेरे साथ मेरे साथ जो जुल्म हुआ है वो तेरे साथ भी हुआ होगा। ठीक है, मेरे साथ जो जुल्म हुआ है वो तेरे साथ भी हुआ होगा। तू भी हीलियम 2 बनना चाहता है और मैं भी हीलियम 2 बनना चाहता हूं। मुझे भी एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है और तुझे भी एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है। ठीक है, क्यों ना हम कुछ ऐसा कर दें, क्यों ना हम कुछ ऐसा कर दें कि मेरा ये जो इलेक्ट्रॉन ये मेरा भी हो और ये तेरा भी हो, ताकि तेरा जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो 2 बन जाए और तेरा ये जो इलेक्ट्रॉन वो तेरा भी हो और मेरा भी हो और मेरा ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो 2 हो जाए। अब इसको समझो, तो इस चीज को कैसे पॉसिबल होता है, देखो मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। वो होता क्या है ना, ये 2 हाइड्रोजन, सपोज ये एक हाइड्रोजन एटम था और ये एक दूसरा हाइड्रोजन एटम था। ठीक है, अब सपोज इस कलर से मैं रिप्रेजेंट करूं, ये एक इलेक्ट्रॉन था इसका और ये एक इलेक्ट्रॉन था इसका। ये तो नहीं दिख रहा है, हाँ इस कलर से दिखेगा तो, और डार्क हो गया, चलो ब्लैक से दिखाते। तो ये एक इलेक्ट्रॉन था और इसका ये एक इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, अब ये दोनों और ये उसका, समझ लो कि लास्ट जो हमारा सेल था उसका जो लास्ट ऑर्बिटल वो है। ऑर्बिटल के बारे में आपको इतना ज्यादा आइडिया होगा नहीं, तो आप इसको सेल ही समझो। अब वो क्या करेंगे, एक अगर तुम सोचो वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। ठीक है, ये हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन एटम वो करीब आ जाएगा और इन दोनों के ये जो आउटर मोस्ट सेल है ना वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे, दोनों के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे। और ये जो ओवरलैप होता है ना, ये अपने आप में कंप्लीट स्टोरी होता है। जब आप 11-12 जाओगे तो आप देखोगे ओवरलैप में क्या क्या हो सकता है, कितना कुछ चीजें होता है इस ओवरलैप के कॉन्सेप्ट को हम यूज करके। तो ये जो हमारा 2 हाइड्रोजन था, ये भी एक हाइड्रोजन और ये भी एक हाइड्रोजन, वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के साथ शेयर किए। कैसे शेयर किए, एक दूसरे के पास आए, ये उनके न्यूक्लियस थे सपोज, एक दूसरे के पास आए और एक दूसरे का जो लास्ट सेल था उन दोनों को ओवरलैप करवा दिए। ठीक है, उन दोनों को ओवरलैप करवा दिए और उनमें क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन का म्यूचुअल शेयरिंग हुआ। किसी ने किसी को कंप्लीट ट्रांसफर नहीं किया है, समझो बात को। HCl में इस बेचारे को पूरा का पूरा अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर करना पड़ा था, कंप्लीट ट्रांसफर करना पड़ा था। उसके खुद के इलेक्ट्रॉन पे उसका कोई हक नहीं था। लेकिन अब क्या होगा, इसका अपने इलेक्ट्रॉन पे भी हक होगा और दूसरे वाले के इलेक्ट्रॉन पे भी हक होगा। इसका क्या होगा, इसका अपने इलेक्ट्रॉन पे भी हक होगा और दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन पे भी हक होगा। और उसको हम बोलते हैं म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें किसी को अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की या किसी के इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट गेन करने की फ्रीडम नहीं मिलती।
यहाँ पर दोनों एक दूसरे के साथ म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं। कैसे करते हैं? सपोज आप समझो इसको, ये उसका लास्ट सेल था और ये उसका लास्ट सेल था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था। जब एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर गए, एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर गए और खुद एक मॉलिक्यूल बन गए, ठीक है, और खुद एक मॉलिक्यूल बन गए, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन मिलके जब हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल बन गए इस तरह से, तो क्या हुआ, इसका जो इलेक्ट्रॉन वो यहां आ गया और इसका जो इलेक्ट्रॉन यहां आ गया। इसके न्यूक्लियस के मतलब कि देखो, ऑर्बिटल का मतलब क्या है, सेल का मतलब क्या है, सेल का मतलब कुछ नहीं है। ये अगर न्यूक्लियस है और ये उसका सेल है, तो समझो कि इसका मतलब है कि न्यूक्लियर का अट्रैक्शन है वहां तक, एक न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है वहां तक। जो एक एटम का जो लास्ट सेल होता है ना, हमको कैसे डिफाइन होता है कि वो लास्ट सेल होता है? वो सिर्फ हम देखते हैं कि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कहां तक है। जहां न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जीरो हो गया, एक एटम का न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जहां जीरो हो गया, उसी को हम बोलते हैं, उस रीजन को हम बोलते हैं, उस एरिया को, वो जो थ्री डायमेंशनल जो स्फेरिकल स्पेस बनता है, उसी को हम बोलते हैं उसका लास्ट सेल। दैट्स इट, और कुछ नहीं है। तो वही होता है, इसका जो न्यूक्लियर रीजन होता है इसके साथ, और इसका जो न्यूक्लियर रीजन होता है इसके साथ, वो दोनों ओवरलैप कर जाते हैं। तो इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन पे देखो, ये वाला जो लास्ट इलेक्ट्रॉन था हमारा, कोई एक अलग कलर ले लेता हूं, ये वाला जो लास्ट इलेक्ट्रॉन था, ये इस वाले न्यूक्लियस के साथ पहले था, लेकिन अब देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन ये वाला इलेक्ट्रॉन का अब इस न्यूक्लियस के साथ भी रिश्ता बन गया, और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो इस न्यूक्लियस के साथ उसका पहले उसके साथ ही उसका रिलेशन था, लेकिन अब देखो इसके साथ भी उसका रिलेशन बन गया। और एक बार अच्छे से इसको समझो, और एक बार इसको अच्छे से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। हुआ क्या, इस तरह से हाइड्रोजन और यहां पे ओवरलैप हो गया हाइड्रोजन, ये उसका न्यूक्लियस था, ये इसका न्यूक्लियस था। इलेक्ट्रॉन को दूसरे कलर से दिखाते हैं, ये उसका इलेक्ट्रॉन था, ये इसका इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। अब देखो ये वाला जो न्यूक्लियस था, पहले इसका रिलेशन सिर्फ इस इलेक्ट्रॉन में था, जबकि वो एक अलग एटम बना के था। जब ये एक अलग एटम था तो ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला न्यूक्लियस का सिर्फ इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ रिलेशन था। लेकिन अब क्या हुआ उसको समझो। अब क्या हुआ ना, अब देखो, हाँ, ये वाला जो न्यूक्लियस था, अब इसका रिलेशन इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ भी बन गया, जो कि दूसरे एटम का है, वो सेम एटम के साथ भी है और दूसरे एटम के साथ भी है, क्योंकि इसका रेंज तो यहां तक है, इसका रेंज यहां तक है, तो इसका रेंज में ये अब आ गया, तो इसका हो गया। अब ये वाला जो न्यूक्लियस, अब देखो पहले इसके साथ था सिर्फ, लेकिन अब इसके साथ भी आ गया, क्योंकि इसका रेंज यहां तक बन गया, ठीक है। तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन के रेंज में, सपोज इसका न्यूक्लियस था, इसका अट्रैक्शन पहले यहां तक था, अब वहां पर क्या हुआ ना, वहां पे बस इतना ही हुआ, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके रेंज में आ गया, तो इसका रिलेशन इसके साथ भी बन गया। उसी तरह से वो जो दूसरा वाला था, इसका रेंज यहां तक था, क्योंकि ये वाला उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन था, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके रेंज में आ गया। ये दोनों न्यूक्लियस हैं, ठीक है, दोनों एटम के न्यूक्लियस। तो अब देखो इस तरह से वो ओवरलैप करके, इसको हम जो म्यूचुअल शेयरिंग बोलते हैं ना, वो एक दूसरे के साथ म्यूचुअल शेयर करते हैं, और इसी को हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, ये जो ओवरलैपिंग होता है ना, इसी को हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। सिर्फ कोवैलेंट बॉन्ड में ही ओवरलैपिंग होता है बेटा, और कहीं नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ कोवैलेंट बॉन्ड में होता है। आयनिक बॉन्ड में ओवरलैपिंग नहीं होता, ये बहुत ध्यान से समझना। आयनिक बॉन्ड में बिल्कुल ओवरलैपिंग नहीं होता, आयनिक बॉन्ड में पूरा सिस्टम अलग हो जाता है। आयनिक बॉन्ड में सपोज आप इसको देखोगे ना, दो एटम इस तरह से होते हैं, वो कभी ओवरलैप नहीं करते, वो अपना इलेक्ट्रॉन इसको कंप्लीट ट्रांसफर कर देता है, और इस इलेक्ट्रॉन पे इसका और कोई भी, इसके न्यूक्लियस के रेंज यहां तक है, वो इसके रेंज के बाहर चला जाता है, और इस वाले का अगर वो अटेंड करेगा तो यहां पे आ जाएगा। तो एक एटम को एक इलेक्ट्रॉन पे अपना जो हक है वो खोना पड़ता है, उसका जो न्यूक्लियर रेंज से वो कंप्लीटली बाहर हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत अच्छे से समझो, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अब देखो, तो ये था कोवैलेंट बॉन्ड का जो फॉर्मेशन का जो कॉन्सेप्ट, ठीक है।
अब हम देखेंगे कुछ और मॉलिक्यूल्स के बारे में, ठीक है, कि कोवैलेंट बॉन्ड्स में और किस तरह से मॉलिक्यूल्स हमारा होता है। हाँ, देखो अब हम कार्बन की चलो बात करते हैं, क्योंकि हम टॉपिक तो हमारा कार्बन का ही है। तो अब हम कार्बन की बात करेंगे, ये किस तरह का बॉन्ड फॉर्म करेगा वो हम डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। हम डिटरमाइन करें, हमें नहीं पता है कि ये आयनिक फॉर्म करेगा, हमें नहीं पता है ये कोवैलेंट फॉर्म करेगा, हम जानना चाहते हैं कि कौन सा बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। और देखो कार्बन यहाँ पे कितना पिकुलियर एलिमेंट है वो भी आप समझना थोड़ा। कार्बन आपको पता है 6, उसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, ठीक है, एटॉमिक नंबर 6 है। न्यूट्रल एटम में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अच्छा, अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो कार्बन जो 6 हमारा है, अगर वो नियरेस्ट नोबल गैस उसको ढूंढना है तो वो अगर उसके थोड़ा आगे देखेगा, अगर वो उसके आगे देखेगा तो उसको नियॉन 10 मिल जाएगा, ठीक है, उसको नियॉन 10 मिलेगा। अगर वो उसको पीछे देखेगा तो उसको हीलियम 2 भी मिलेगा। और ध्यान से देखो यहां पर भी उसको 4 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है और यहां पर भी उसको 4 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, ठीक है, वहां पर भी उसको 4 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है और यहां पर भी उसको 4 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है, इसको समझो। हम खुद डिटरमाइन करेंगे, हमें कुछ कहीं से देख के नहीं जाना, हम खुद डिटरमाइन करेंगे। तो यहां पर क्या होगा, अगर सपोज तो उसके पास 2 ऑप्शन आ गया, किसी और एटम में नहीं होता, जो बीच वाला एटम होगा उसके पास 2 ऑप्शन है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन अगर वो क्या करेगा, अगर 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज करेगा, अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज कर देगा तो वो हीलियम 2 बना देगा और वो एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वो अटेंड करेगा, वो उसका ड्यूप्लेट होगा, वो उसका ड्यूप्लेट कॉन्फ़िगरेशन होगा। और अगर नियॉन के पास जाएगा अपने ऑक्टेट को फुलफिल करने, तो वहां पर उसको गेन करना होगा 4 इलेक्ट्रॉन, इट हैज टू गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो वहां पर इसको गेन करना होगा 4 इलेक्ट्रॉन। तो अब देखो दिक्कत क्या हुआ हमारा, अगर तुम समझो कि पहले हम इसको डिस्कस करते हैं गेन के केस को, ठीक है। यहां पर बेटा 6 प्रोटॉन्स है उसके न्यूक्लियस में, न्यूट्रॉन्स तो चार्जलेस होते हैं। ये जो 6 प्रोटॉन्स होते हैं, आप इस तरह से इलेक्ट्रॉन सारे थे, ठीक है। अब अगर तुम 4 इलेक्ट्रॉन बाहर से इसमें डालोगे, अगर तुम अभी 4 इलेक्ट्रॉन बाहर से इसमें डालोगे तो दिक्कत क्या होगी पता है, ये जो इलेक्ट्रॉन के बीच में, ये जो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन आना स्टार्ट हो जाएगा और इसका जो अट्रैक्शन 6 प्रोटॉन का, इसको मतलब ओवरकम नहीं कर पाएगा, इसका जो अट्रैक्शन होगा उसको ओवरकम नहीं कर पाएगा, उसका जो रिपल्शन जितना क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो टोटल समझो 10 इलेक्ट्रॉन बन गए उस सिस्टम में और सिर्फ 6 प्रोटॉन है, 6 पॉजिटिव चार्ज पर 10 नेगेटिव चार्ज, कैसे उसका न्यूट्रलिटी मेंटेन होगा, नहीं होगा। सो यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है उसके वजह से दैट विल बिकम अनस्टेबल, वेरी मच अनस्टेबल। तो कार्बन निकला था स्टेबिलिटी के लिए, कार्बन निकला था स्टेबिलिटी को ढूंढने, लेकिन उसको मिली अब अनस्टेबिलिटी। तो ये ऑप्शन उसके पास नहीं है, गेन 4 इलेक्ट्रॉन ऑप्शन उसके पास नहीं है। ये समझ में आया होगा आपको। अब चलो हम लूज की बात करेंगे कि 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। बेटा देखो पहली बात तो है कि 6 प्रोटॉन्स यहां पे न्यूक्लियस में है। आप इस तरह से सेल में 4 इलेक्ट्रॉन बाहर थे, 2 इलेक्ट्रॉन यहां थे, आप इन 4 इलेक्ट्रॉन को सपोज आप निकाल दिए। बेटे ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन्स को निकालना कोई मजाक वाली बात नहीं है, उसके लिए हमें बाहर से एनर्जी देना होगा, बाहर से हमें एनर्जी देना होगा। चलो एक को निकालना आसान होता है, लेकिन दूसरे को निकालना उससे मुश्किल होता है, तीसरे को और ज्यादा मुश्किल होता है, चौथे को और भी ज्यादा मुश्किल होता है। इस कॉन्सेप्ट को हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक पीरियडिक प्रॉपर्टी में, आयनाइजेशन एनर्जी में, तब देखना इलेक्ट्रॉन्स को निकालना कितना मुश्किल होता है। और वहां पर अगर सपोज आपने निकाल भी दिया तो ये भी देखो 6 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, अब यहां पर भी जो न्यूट्रलिटी लॉस हो जाएगा ना, आप उसको संभाल नहीं पाओगे। तो 4 इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है, 2-3 आप निकाल, 2 भी आप निकाल दोगे, 3 तक भी आप निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा।
तो ये भी जो मतलब ऑप्शन था लूज 4 इलेक्ट्रॉन का, ये भी उसके पास नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है उसके पास कार्बन के पास। तो कार्बन के पास कौन सा वाला ऑप्शन नहीं है, ना तो वो इलेक्ट्रॉन गेन कर पाएगा, ना ही कार्बन इलेक्ट्रॉन लॉस कर पाएगा। तो कार्बन का जो आयन फॉर्मेशन का जो सपना था वो चूर चूर हो गया। इट कैन नॉट फॉर्म आयन, ना ही वो कार्बन +4 बना पाएगा बाय लूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन, ना ही वो कार्बन -4 बना पाएगा बाय गेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो सिंपल एक चीज आप ध्यान रखना जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बन कैन नॉट फॉर्म आयोनिक कंपाउंड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीज है कि क्यों नहीं बना पाएगा। आपको कोई भी पूछेगा कि कार्बन क्यों नहीं बना पाएगा आयोनिक कंपाउंड, तो आप इस तरह से उसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि वो क्यों अपने एटम्स को लूज भी नहीं, 4 इलेक्ट्रॉन वो लॉस नहीं कर पाएगा, लूज नहीं कर पाएगा, और अपने 4 इलेक्ट्रॉन वो गेन भी नहीं कर पाएगा अपने ऑक्टेट या फिर डुप्लेट कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए। तो कार्बन कैन नॉट फॉर्म आयोनिक कंपाउंड्स। तो इसके पास अपने, लेकिन इसको भी ऑक्टेट अपना चाहिए, इसको भी अपने ऑक्टेट पूरा करना है, तो वो कैसे करेगा? अब वो कैसे करेगा? अब वो कैसे करेगा? अब आएगा मजा। अब यहां देखो, सपोज ये हमारा कार्बन का एटम था और ये हमारा उसका आउटर मोस्ट शेल है, और ये उसके 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब बेचारा कार्बन बहुत दुखी है, अब ये बेचारा कार्बन बहुत दुखी है, मैं क्या करूं? मेरे ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है इनको ना तो मैं किसी को दे पा रहा हूं, ना मैं 4 इलेक्ट्रॉन्स ले पा रहा हूं, मैं अपना जो ऑक्टेट ना डुप्लेट कुछ भी फुलफिल नहीं कर पा रहा हूं आयोनिक कंपाउंड फॉर्म करने के चक्कर में। तो वहां पर सपोज उसके आसपास उसको हाइड्रोजन, बंच ऑफ हाइड्रोजन उसको दिख गए, तो वो उनसे 4 हाइड्रोजन को बुलाएगा कि कम हियर, और उनके साथ वो एक डील बनाएगा। क्या डील बनाएगा? वो हाइड्रोजन को बोलेगा कि देखो भाई हाइड्रोजन, तुम 4 हो, तुम्हारे पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तुम्हारे पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तुम चाहते हो अपना ड्यूप्लेट फॉर्म करना, मैं चाहता हूं अपना ऑक्टेट फॉर्म करना। तुम चाहते हो अपना ड्यूप्लेट फॉर्म करना, मैं चाहता हूं अपना ऑक्टेट फॉर्म करना, लेकिन दोनों के पास आयोनिक कंपाउंड फॉर्म करने का ऑप्शन नहीं है। तो क्यों ना हम ऐसा कुछ करें कि तुम्हारा इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो, मैं मेरा इलेक्ट्रॉन तुम्हें दे दूं, और लेकिन दोनों सारे इलेक्ट्रॉन्स पे सबका हक बना रहे। तो हाइड्रोजन भी बोला गया कि चलो ये भी अच्छा ऑप्शन है। तो ये दोनों अगर अपने ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको अगर शेयर करें, ठीक है, अगर ये दोनों ये सब अपने ये जो इलेक्ट्रॉन्स को अगर वो शेयर करें, म्यूचुअल शेयर जिसको मैंने बोला था, शेयर करें, तो अब क्या बनेगा? देखो इंटरेस्टिंग चीज ये है, अब देखो कार्बन का मतलब ओवरलैप कर जाएगा ना, मतलब कि समझो कार्बन एक्चुअल में ऐसा था, ठीक है, क्योंकि वो ओवरलैप करेगा ना, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन कार्बन के न्यूक्लियस के रेंज में आ गए। तो कार्बन का तुम काउंट करो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, अब काउंट करो, पहले कितना था? 1 2 3 4, लेकिन अब कितने बन गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन्स फॉर कार्बन बन गया। तो कार्बन का बेटा ऑक्टेट पूरा, 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, ओके, 8 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब कार्बन हो गया स्टेबल। अब हाइड्रोजन का देखो, हाइड्रोजन को अपना ये था, हाइड्रोजन इस तरह से ओवरलैप किए होंगे, ठीक है, इस तरह से ये लोग ओवरलैप किए होंगे, वो अंदर वाला भूल जाओ, इस तरह से ओवरलैप किए, ये हाइड्रोजन एटम्स होंगे, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉन यहां पर होगा, ये वाला हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, वो कार्बन के रेंज के अंदर आ गए। अब हाइड्रोजन के रेंज के अंदर ये भी आ गया, तो हाइड्रोजन का जो रेंज बन गया वो इतना बन गया। तो हाइड्रोजन को दिख गया 2 इलेक्ट्रॉन फॉर ईच हाइड्रोजन एटम, तो वो खुशी खुशी अपना ड्यूप्लेट उसने भी कंप्लीट कर लिया, वो भी अपने ड्यूप्लेट को कंप्लीट कर लिया वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन में। तो इसको अपना हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन मिल गया, इसको अपना नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन नियॉन 10 का मिल गया, इसको हीलियम 2 का मिल गया, और ये दोनों के दोनों स्टेबलाइज हो गए और मिलके वो फॉर्म कर रहे हैं CH4, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, CH4,
अब और एक चीज हम यहाँ पे मैं एक साथ बता देता हूं, देखो, नहीं वो अलग से उसको बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बता देता हूं, फिर से और एक बार बता देते हैं। देखो, ये जो कार्बन था, इसका एक इलेक्ट्रॉन, ऐसे 4 इलेक्ट्रॉन थे, फिर हाइड्रोजन आया, ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन्स, अब इनका शेयरिंग हुआ, तो ये जो एक जो पेयर बना, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स का एक जो पेयर बना, उसको हम बोलते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक बॉन्ड से, ठीक है, इस तरह से एक सिंगल लाइन, इस तरह से अगर आप एक मतलब यहां पे बता रहा हूं, अगर कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच अगर आप इस तरह से एक सिंगल लाइन ड्रॉ कर रहे हो, उसका मतलब यह है कि वो दोनों 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किए हैं, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को वो उन दोनों ने शेयर किया है एक दूसरे के साथ। और ये जो सिंगल लाइन को हम बोलते हैं दिस इज अ सिंगल बॉन्ड, और ये एक कोवैलेंट बॉन्ड होता है, ये एक कोवैलेंट बॉन्ड होता है, आयोनिक नहीं होता है, कोवैलेंट होता है, ठीक है। तो ईच शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ईच शेयर पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जो कि पेयर हुए हैं, शेयर हुए हैं, ईच शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स वन सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो यहां पर भी एक सिंगल बॉन्ड, यहां पर भी एक सिंगल बॉन्ड, यहां पर भी एक सिंगल बॉन्ड। तो अगर आपको कार्बन और हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर जब आप आगे जाके देखोगे, तो आप देखोगे कि उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, मतलब इस तरह से तो नहीं होता है, उसका स्ट्रक्चर एक्चुअल में इस तरह से होता है, अगर उसका रियल स्ट्रक्चर देखोगे तो इस तरह से होता है, लेकिन वो अभी आप थोड़ी ना, मैं आपको अभी से बता दूं तो आप आगे जाके क्या बताऊं मैं। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि ये सब कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाए हैं और ईच बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से शेयर हुए, इसका मतलब यही होता है, ठीक है। ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं, 1 सिंगल लाइन। तो मैं इसको लिख भी देता हूं ताकि आप थोड़ा सा पॉइंट आपको याद रह जाए। हाँ, यहां पे मैं आपको लिख देता हूं कि ईच shared pair of electron is represented by a single bond और लाइन, जिसको हम लाइन बोलते हैं, लेकिन उसको हम बॉन्ड ही बोलोगे, आप एक सिंगल बॉन्ड उसको बोलोगे, which is a covalent bond, ठीक है, which is a covalent bond, ये ध्यान में रखना, आयनिक मत बोल देना। तो ये था हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अब हम कुछ और कंपाउंड्स के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कि किस तरह से वो अपने अपने अंदर कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। सपोज आप नाइट्रोजन की बात करो, चलो हम नाइट्रोजन की बात करते हैं। अब नाइट्रोजन आपको पता है, नाइट्रोजन 7, इसके वैलेंस शेल में कितने होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 तो फिल हो जाते के में और एल में कितना फिल होगा? 5। तो ये होता है उसका वैलेंस शेल एल, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5, ठीक है। आपको थोड़ा इसको जानना होगा, आपको याद रखना होगा ये वाला कि हाँ, आपको ये वाला याद रखना होगा, के एल एम एन, और उनका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, 8, 18, 32, ये थोड़ा आप ध्यान में रख लेना, ठीक है। इसको आपको प्लीज 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 आपको ये ध्यान में रखना होगा। आप इमीडिएटली डिटरमाइन कर पाओगे हाउ मेनी नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर। तो यहां पे हमको पता चल गया 5 इलेक्ट्रॉन। अब देखो क्या होगा, यहां पे ध्यान से समझना है, ध्यान से समझना है। इसमें नो डाउट इसका जो नियरेस्ट कॉन्फ़िगरेशन होगा नोबेल गैस का, वो होगा नियॉन 10, सॉरी नियॉन 10। अगर नियॉन 10 में उसको जाना है तो उसको क्या चाहिए? उसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए गेन करना, और उसको -3 चार्ज अटेंड करना पड़ेगा। एंड नाइट्रोजन कैन अटेंड -3। अब देखो, अब वो किसी और के साथ भी बना सकता है, जैसे कि अगर वो 3 उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो अगर वो क्या करेगा, इस तरह से उसका 3 इलेक्ट्रॉन इस तरह से है, और बाकी 2 भी है ना ऑलरेडी हमारे पास, क्योंकि वैलेंस शेल को हमें पूरा रिप्रेजेंट करना पड़ता है। तो वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे किया। ये भी अगर ऐसा भी कर सकते हैं कि हाइड्रोजन को बुला सकते हैं अपने पास कि कम हियर,
आपके पास एक इलेक्ट्रॉन, मेरे पास इलेक्ट्रॉन, लेट्स मेक अ डील, लेट्स मेक अ कोवैलेंट बॉन्ड, लेट्स मेक 3 कोवैलेंट बॉन्ड्स। ओके, ये एक कोवैलेंट बॉन्ड, ये एक कोवैलेंट बॉन्ड और ये एक कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो अब देखो ये जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन में, तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये था अपना जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये था शेयर्ड पेयर। पर देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये थोड़ा आप जान लो, यहाँ पर अभी जितना पहले से आप जान जाओगे इन टर्म्स को, आपको आगे 11-12 में बहुत आसान हो जाएगा। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में, देखो वैलेंस शेल में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन थे, उसमें से बेटा 3 इलेक्ट्रॉन हमने यहां पर बॉन्ड बना दिया, क्योंकि हमें 3 इलेक्ट्रॉन हमें चाहिए उसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए। और हमारा मतलब बनने के बाद हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा उसके वैलेंस शेल में बच जा रहे हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन का जो एक पेयर बनता है ना, जो बच जाते हैं, जो शेयर्ड नहीं होते हैं, जो अनशेयर्ड पेयर होता है, जो अनशेयर्ड पेयर होता है उसको हम क्या बोलते हैं पता है? उसको बोलते हैं हम लोग लोन पेयर, जो कि एक 11-12 का कॉन्सेप्ट है, लेकिन आप यहां से थोड़ा सा इसको ध्यान रख लो। उसको लोन पेयर शॉर्ट फॉर्म, उसको हम एलपी में रिप्रेजेंट करते हैं। अब और एक चीज हम लोग देखेंगे, तो ये NH, तो देखो यहां पर ये नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बनाया? उसने NH3 बनाया। इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? ऐसे चलो 2 लोन पेयर, एक तो लोन पेयर, बाकी जो 3 हाइड्रोजन वो इस तरह से सिंगल बॉन्ड बना के रहेंगे, और इसका मतलब कि ऐसे 2-2 इलेक्ट्रॉन उन्होंने शेयर किया। ये एक इलेक्ट्रॉन का जो सिंगल बॉन्ड होता है वो 1 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये भी खत्म हो गया। अब देखते हैं, चलो और एक चीज हम लोग देखेंगे। अब हम देखते हैं और एक पॉसिबिलिटी देखते हैं, नाइट्रोजन किस तरह से अपना अटेंड कर पाएगा। एक नाइट्रोजन अगर चाहेगा, अगर वो चाहेगा कि नहीं मैं बाहर क्यों जाऊं, मैं अपने आप अपने साथ मिलकर बनाऊंगा। तो देखो 2 नाइट्रोजन अगर एक दूसरे के पास आएंगे, तो ये नाइट्रोजन बोलेगा देख भाई मेरे पास देख 5 इलेक्ट्रॉन इस तरह से हैं, तेरे पास भी देख 5 इलेक्ट्रॉन इस तरह से हैं। अब तुझे भी चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन, मुझे भी चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन, तो क्यों ना मैं अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स तुझे शेयर कर दूं, तू अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स मुझे शेयर कर दे। तो वो एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। तो देखो ये एक पेयर शेयर हुआ, एक बॉन्ड, ये और एक पेयर शेयर हुआ, 2 बॉन्ड, ये और एक पेयर शेयर हुआ और एक बॉन्ड। तो यहां पे देखो ये था 1 बॉन्ड, ये था 2 बॉन्ड और था 3 बॉन्ड। तो इस जैसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रक्चर। मतलब कि देयर आर 3 शेयर्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स। ट्रिपल बॉन्ड कब बनता है? जब देयर आर 3 पेयर्स ऑफ 3 shared pairs, okay, 3 shared pairs of electron between 2 atoms, between 2 atoms, okay, same नहीं, 2 atoms, 2 atoms के बीच 3 शेयर हुए हैं, वहां पर बनेगा ट्रिपल बॉन्ड। और यहां पे मैं लगे हाथ बता देता हूं, और यहां पे देखो 2 बच गया, तो ये इसका एक लोन पेयर और ये इसका एक लोन पेयर, जो कि अनशेयर्ड होता है। शेयर्ड पेयर बॉन्ड बनाता है, अनशेयर्ड पेयर लोन पेयर बनाता है, वैलेंस शेल। मैं इसको फिर से समराइज कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। इसको थोड़ा एक्वेंटेड होने में टाइम लगा, छोटे बच्चे हो आप लोग, लेकिन आपको इसको समझना होगा। देखो अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं, 2 ऑक्सीजन की बात करता हूं, ऑक्सीजन का हमें पता है 6 होता है, O6। तो इसका क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन? K में 2 और L में 6, तो नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 6। तो यहां पर देखो 6 इलेक्ट्रॉन इस तरह से रहते हैं, ठीक है। लेकिन उसको कितना, ऑक्सीजन 8, लेकिन इसको अपना नोबेल गैस जो नियरेस्ट नियॉन का अटेंड करने के लिए कितना चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसको 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए और 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करना पड़ेगा उसको। तो 2 ऑक्सीजन अगर आसपास आएंगे तो वो बोलेगा कि देख भाई मेरा 2 इलेक्ट्रॉन मेरे पास है, तेरा 2 इलेक्ट्रॉन तेरे पास है, लेट्स शेयर इट। तो वो क्या करेंगे? ये दोनों एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे और ये इन दोनों को एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, और शेयर को हम बॉन्ड में दिखाते हैं। तो इस तरह के जो बॉन्ड, 2 बॉन्ड जब बनते हैं तो उसको हम बोलते हैं, जब 2 बॉन्ड बनते हैं उसको हम बोलते हैं डबल बॉन्ड, ठीक है, उसको हम बोलते हैं डबल बॉन्ड। ये कब बनता है? जब 2 शेयर्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहता है। और अगर हाइड्रोजन की बात करो, 2 हाइड्रोजन के बीच, इनके बीच
एक था वो था सिंगल बॉन्ड। तो तीन तरह के बॉन्ड हमें देखना है, एक तो सिंगल बॉन्ड, दूसरा है डबल बॉन्ड जो कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड होता है, N3N2 मॉलिक्यूल में, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में ट्रिपल बॉन्ड होता है, और हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल में सिंगल बॉन्ड होता है। कि क्यों फॉर्म होता है आपको बस जानना है, इतना सिंपल सी बात है। यहां पे मैं आपको बता रहा हूं, सिंपल सा लॉजिक है, आप इसको थोड़ा नोट कर लेना। नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड, number of bonds formed is equal to number of shared pairs of electrons, number of shared pairs of electrons, ठीक है, between two atoms। जितने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुए होंगे, ध्यान रखना जितने नंबर का इलेक्ट्रॉन नहीं, जितने पेयर मिलके जितना पेयर बना रहा होगा उतना ही नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म होगा। तो टाइप्स ऑफ बॉन्ड इसको अलग हेडिंग करके भी पढ़ा सकते थे, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं कि तीन तरह के बॉन्ड हमने देखा, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल। और ध्यान रखना तीनों के तीनों कोवैलेंट होते हैं, तीनों के तीनों कोवैलेंट होता है। इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा बिकॉज आप 11-12 में बाकी सब पढ़ोगे, पाई बॉन्ड वगैरह सब आप देखोगे आगे। लेकिन अभी आप सिर्फ सिंगल, डबल एंड ट्रिपल को देखना है, और हम इस टॉपिक में भी देखेंगे, लेकिन फिलहाल हमें सिंगल, डबल, ट्रिपल जानना है और ज्यादा कुछ जानने की जरूरत है नहीं। तो मैंने आपको बता दिया कोवेलेंट बॉन्ड। आई थिंक कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में आपको कोई और दिक्कत होगा नहीं, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में हमें शायद और कोई दिक्कत होने वाला होगा नहीं। तो अगर हमें समराइज करना है, सिर्फ इतना करना है कि कोवेलेंट कंपाउंड्स में क्या होता है, कोवेलेंट कंपाउंड्स में क्या होता है, सिंपल सी बात है, म्यूचुअल शेयरिंग, दैट्स इट। सिर्फ हमें यह जानना है कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ट्रांसफर नहीं होता। ट्रांसफर आयनिक कंपाउंड में होता है, जो कि हम अभी इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो देखो, जब म्यूचुअल शेयरिंग होता है तो वो एटम के फॉर्म में ही रहता है, वो आयन नहीं फॉर्म होता है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो अपने पास वो रखता है, एटम वहां पे फॉर्म नहीं होता, कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता। एटम फॉर्म होने के लिए कंप्लीट ट्रांसफॉर्म होना जरूरी है। तो नो आयन फॉर्मेशन, तो नो आयन फॉर्मेशन, क्योंकि आयन फॉर्मेशन के लिए कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, जो कि हमें आयनिक कंपाउंड में मिलता है। तो अगर नो आयन फॉर्मेशन होता है तो क्या वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे? नो, सो दे आर नॉन कंडक्टर्स, क्योंकि उसमें आयन फॉर्मेशन नहीं होता है। और एक चीज, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट एंड जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, ये बेटा वेरी लो होता है, बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। इतना कम कि अगर तुम उस मिथेन का जो CH4 था उसका अगर मेल्टिंग पॉइंट देखो तो वो अराउंड 90 केल्विन आता है, बॉइलिंग पॉइंट शायद 111 केल्विन आता है। 90 केल्विन मतलब तुम समझो 273 केल्विन इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 373 केल्विन इक्वल टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 90 केल्विन मतलब कि कितना माइनस, सोच लो कितना माइनस, 273 माइनस 90 कर देना, जितना आएगा उतना माइनस डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब मेल्ट हो जाता है इतने में। इतना कम होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। मतलब कि उसको आप सॉलिड करने के लिए आपको कितना उसको चिल करना पड़ेगा। रूम टेम्परेचर में ये सब के सब मोस्टली लिक्विड में होते हैं, ठीक है। अब देखो, तो दो पॉइंट्स हमने आयोनिक में देखा था कि उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। यहां पे हमने इसको, चलो हम थोड़ा सा भी डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। यहां पे आपको अगर क्वेश्चन आ जाए, सपोज मैं यहां पे कोवेलेंट कंपाउंड्स उनके प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर देते हैं, क्या पता क्वेश्चन कोई पूछ लेगा तो फिर दिक्कत हो जाए ना आपको, क्योंकि आपको इंडिविजुअली चीजों को याद रह जाएगा, लेकिन ऐसे टॉपिक वाइज आपको याद नहीं रह सकता है। तो यहाँ पे क्या होता था बेटा, यहाँ पे होता था म्यूचुअल शेयरिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
फिर हमें पता है इसका जो बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट इज वेरी लो, और इसका बेटा आपको पता है हाई होता है। ज्यादा लिखने की जरूरत है नहीं क्योंकि आयनिक कंपाउंड के प्रॉपर्टीज को हमने बहुत अच्छे से देख लिया है ऑलरेडी। फिर देखो कोवेलेंट कंपाउंड्स में और क्या होता है, हाँ हाँ कोवेलेंट कंपाउंड्स में और क्या होता है, ये जो हमारे, देखो पहली बात तो हम आयोनिक में देख लेते हैं कि मोस्टली सारे के सारे सॉलिड स्टेट में ही रहते हैं, मोस्टली सारे के सारे सॉलिड स्टेट में लेते हैं। लेकिन हमारा जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होता है ना, वो सॉलिड में भी रह सकते हैं, वो लिक्विड में भी रह सकते हैं, वो गैस में भी रह सकते हैं। एग्जाम्पल गैस का अगर मैं बोलूं, अगर आप क्लोरीन को लोगे Cl2 बनाओगे तो वो गैस में होता है। अगर लिक्विड बनाओगे, अगर आप ब्रोमीन को ले जाओगे Br2 बना के, वो गैस हो जाएगा। अगर आप I2 आयोडीन को बना के ले जाओगे वो सॉलिड हो जाएगा। और ये सब के सब हैलोजन ग्रुप में होते हैं, जो कि आप पीरियोडिक टेबल में आप देखोगे इसको, मतलब एक तरह के एक ग्रुप में उनको हम क्लासिफाई करते हैं। उसमें एक गैसियस स्टेट में रहता है, एक लिक्विड स्टेट में रहता है और एक सॉलिड स्टेट में रहता है। तो ये था उसका और हाँ, यहां पर आप इसको कंडक्टर बोल सकते, इसको आप बोलोगे दीज आर कंडक्टर्स, कहां पे, एक्वस एंड मोल्टेन में, ठीक है, एक्वस एंड मोल्टेन, एंड दीज आर नॉन कंडक्टर्स। इसमें कोई बोलने वाली बात है नहीं, मैंने ऑलरेडी बता दिया है, दीज आर नॉन कंडक्टर्स, ठीक है। तो ये था डिफरेंशिएट कोवेलेंट कंपाउंड एंड आयनिक कंपाउंड में। और एक छोटा सा चीज, 1 मिनट का चीज बच गया है, वो मैं थोड़ा सा बता देता हूं। देखो आपको पता है जब जब हमने H2 या N2 या फिर O2, Cl2, Br2, I2 एटसेट्रा एटसेट्रा, जितने भी हम दो सिमिलर एटम, मतलब दोनों के दोनों सेम एटम को लेकर जो मॉलिक्यूल हम बनाते हैं ना, उनको हम बोलते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। चाहे वो कोई भी बॉन्ड हो, चाहे वो कोई भी बॉन्ड हो, देखो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में अगर आप लॉजिक लगाओ तो वो कोवेलेंट ही होगा। लेकिन आप अगर किसी ऐसे मॉलिक्यूल को कंसीडर करोगे, HCl, H2O, कुछ भी एटसेट्रा एटसेट्रा, जैसे NH3 भी हमने कंसीडर किया था, CH4 को भी हमने कंसीडर किया था, एटसेट्रा एटसेट्रा, जहां पर क्या होता है ना, जो एटम्स होते हैं, देखो यहाँ पे सोडियम एक, क्लोरीन अलग, हाइड्रोजन क्लोरीन अलग, हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग, नाइट्रोजन हाइड्रोजन अलग, कार्बन हाइड्रोजन अलग, इनको हम बोलते हैं हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो इनको थोड़ा ध्यान रखना कि होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स एंड हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, होमो एटॉमिक एंड हेटेरो एटॉमिक। देखो यहां पर मैंने थोड़ा सा शायद अच्छे से समझाया नहीं था, एक चीज मैं आपको यहां पे थोड़ा सा बता देता हूं। हमारे जो कोवेलेंट कंपाउंड्स में, ये लास्ट कॉन्सेप्ट होगा आज का, हमारा जो कोवेलेंट कंपाउंड्स था, मैंने यहां पे बताया आपको कि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, दीज आर वेरी लो। मैंने सिर्फ आपको डाटा दिया था, इसका लॉजिक मैं आपको अभी बता रहा हूं, बहुत कम होता है। ऐसा क्यों होता है? देखो कोवेलेंट कंपाउंड में ना, इन अ मॉलिक्यूल, मतलब एक मॉलिक्यूल के अंदर, सिर्फ एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं। सपोज आप कोई भी एक कोवेलेंट कंपाउंड ले जाओ, सपोज ऑक्सीजन O2 ले रहा हूं मैं, या फिर चलो CH4 ले लेते हैं। देखो CH4 एक मॉलिक्यूल अपने अंदर सिर्फ एक मॉलिक्यूल में, उसके बीच का जो इंटरेक्शन होता है वो स्ट्रांग होता है, स्ट्रांग इंटरेक्शन होता है एक मॉलिक्यूल में। लेकिन जब हम एक कंपाउंड को समझते हैं, वहां पर तो बेटा सिर्फ एक मॉलिक्यूल नहीं होता ना, वहां पे ह्यूज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, यू कांट काउंट, इतने सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। वहां पर उनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर, मतलब मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल्स के अंदर, दो अलग मॉलिक्यूल्स के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। वो वीक हो जाता है, वो हम वीक फोर्सेस के लिए वो रेस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि कुछ वीक फोर्सेस का एग्जांपल हम देते हैं, वैन डर वाल्स फोर्स एटसेट्रा, क्योंकि देखो ये गैसियस स्टेट में भी रहते हैं,
अब गैसियस स्टेट में आपको खुद लॉजिक भी आपको पता है, गैसियस स्टेट में उनके बीच जो इंटरेक्शन होता है वो बहुत वीक होता है। लिक्विड में भी बहुत वीक होता है, लेकिन गैसियस में सबसे वीक होता है। सॉलिड में थोड़ा स्ट्रांग होता है, लेकिन गैसियस और लिक्विड में वो वैसे भी वीक होता है। तो इसीलिए ये जो जब हम किसी कंपाउंड को अगर तुम हीट करोगे तो उनके बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो बहुत वीक होता है। तो उनको तोड़ने के लिए, टू ब्रेक दैट इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वी डोंट नीड अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी, बहुत कम अमाउंट में वो टूट जाता है। तो इसीलिए उनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों लो होते हैं। और एक चीज आपको मैं बता रहा हूं, जब इनसाइड ऑफ मॉलिक्यूल जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, देखो दो चीज ध्यान में रखना, सेम मॉलिक्यूल के अंदर उसको हम इंट्रा INTRA इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। कुछ भी बोलो, अगर एक मॉलिक्यूल के अंदर होगा तो वो होगा इंट्रा, अगर वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर होगा वो होगा इंटर। ये ध्यान रखना, इंट्रा एंड इंटर, दैट इज द डिफरेंस। तो इतना ही आज समझाना था कोवैलेंट कंपाउंड्स के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, कोवैलेंट कंपाउंड्स का जो फॉर्मेशन था उसको समझना, कोवैलेंट कंपाउंड्स के जो प्रॉपर्टीज थे उसको भी समझना, और उनका क्या डिफरेंशिएट, हम किस तरह से उनको करते थे आयनिक कंपाउंड से, उसको समझना। और कार्बन क्यों ऑलवेज कार्बन फॉर्म्स कोवैलेंट बॉन्ड, क्योंकि वो आयनिक बॉन्ड फॉर्म ही नहीं कर पाएगा। उसमें वो कंडीशन, दोनों कंडीशन, इलेक्ट्रॉन गेन करना और इलेक्ट्रॉन लॉस करके अपना -4 या +4 स्टेट अटेन करना इम्पॉसिबल हो गया था। तो इसीलिए उसका आयोनिक कंपाउंड फॉर्म करना इम्पॉसिबल हो गया, लेकिन वो कोवैलेंट कंपाउंड फॉर्म कर सकता है। तो यही था आज का हमें जो कार्बन, इस टॉपिक का जो इंट्रोडक्शन पार्ट था वो यही था। नेक्स्ट हम लोग एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन को नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स, एंड अगर कोई डाउट्स होगा या फिर कुछ भी आपको डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में, या फिर हम अपना जो ईमेल आईडी प्रोवाइड करते हैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां आप पूछ सकते हो। आई विल क्लैरिफाई ऑल योर डाउट्स। सो थैंक्स अ लॉट।